household uh, where husband and wife fight, we also have our fights. That is Shijan. जैसे हर घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, मेरे घर पे भी होता है। So recently, after a fight, just a few days back, Shija quoted saying that she read about a survey done amongst women, why women are so angry with their husbands. और शीजा ने कहा, एक झगड़े के बाद ये हुआ, शीजा ने पढ़ाई लिखाई शुरू करी, कहा कि मैं तथ्यों के साथ वापस आती हूँ, और उन्होंने ये तथ्य देखा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि स्त्री जन जो है वो अपने पतियों से इतना गुस्सा क्यों रहती हैं। And the survey, Can you just check if you're audible at the back? I think you are. It's too high. Huh? It's muffled. Okay. but guys, why are you sitting there? You come and sit here. We are talking about laziness. Come on, man. Show some energy, some purti. Is that better? Yeah. Hello? Yeah. Okay. Yeah, so according to Shija, the survey says that women get angry because in the morning women see their men sitting on the couch doing nothing while they run around the house और doing everything. और और That's not what you said? According Then please say it. That women's stress levels are highest when they see the husbands on the couch. तो मैंने क्या अलग बोला? Either way, we agree. Okay, fine. और Yeah, go ahead. मैं ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पत्नियों को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब वे अपने पतियों को आराम फरमाते हुए देखते हैं, उनके सामने जो सोफ़ा होता है वहाँ पर जब वो देखते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। So today we're going to talk about laziness, and that's a special subject. और आज जो मैं जिस पे बात करने वाला हूँ विषय, जैसे हमने ऑफ साइड में भी किया, घातक पाप के घातकता पे हमने बात करी, और आज जो हम बात करेंगे वो है आलस के ऊपर। And out of the sins that we covered, and we probably look at greed and gluttony also, that makes it 7 deadly sins. और 7 घातक पापों के बारे में है, तो शायद आगे हम लोग इन बाकी 2 पापों के बारे में भी हम देखेंगे। This particular sin of slothfulness or laziness is the least deadliest, seemingly the least deadliest. और जो आलसपन है, अगर देखा जाए तो पापों के श्रेणी में जब आप उसको डालेंगे तो उसकी जो घातकता है बड़ी कम दिखती है। The tendency is to describe laziness as merely a lack of physical energy. और अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं आलसपन का अगर एक परिभाषा डालें तो कमजोरी कह सकते हैं, शारीरिक कमजोरी या शरीर में उतना फुर्तीलापन नहीं है। Oh, I'm feeling physically tired. I just don't want to do work today or do something which I'm supposed to do. और कहने का ये तात्पर्य हो सकता है, आप कहेंगे देखिए बहुत थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब मेरे शरीर में उतना शक्ति नहीं है कि जो ये काम मुझे करना है उसको मैं करूँ या उसको पूरा करना। People in my age group say that we are getting old. That's a way of putting out, laziness. और मेरे जो उम्र के जो श्रेणी के जो लोग हैं वो इस बात को कहेंगे या आलस को परिभाषित करते हुए उसका शब्द इस प्रकार डालेंगे कि अब हमारी उम्र होने लगी है। But we must, and Bible says this, that laziness is a sinful condition of our heart. Laziness is a sinful condition of our heart. It is not primarily a physical tiredness, but a condition of our heart. परंतु जब आप बाइबल में आलसपन को ढूंढने लगते हैं तो बाइबल जो है वो इस बात को इस परिभाषित करती है कि ये आपके हृदय की पाप की अवस्था को दर्शाता है। We must understand that this sin of laziness is like a poison within the confines of our heart. और आलस को आप इस प्रकार समझिए कि वो आपके दिल में
एक तरह का जहर की तरह वो फैलता है और जहर आपके दिल में फैलने लगता Or है। in other words, laziness becomes a addiction. It's a very addictive particular sin which remains under the radar, and that is why I said it looks the least deadliest, but it is deadly as any other sin. और इस अगर आप आलसपन को देखिएगा तो इसकी लत अगर लग गई, और लत लगने में बहुत कम समय लगता है, हम बहुत जल्द ही लत में लग जाते हैं, आलसपन की लत में लग जाते हैं और इसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पापों में अगर देखा जाए तो बहुत ही घातक एक पाप है। Dorothy says, a great writer says, and I quote, "It is insidious and assumes such shapes and sizes that it is rather difficult to define the sin of laziness." और यहाँ पर डॉर्थी इस बात को कहती है कि ये आलस जो है, इसके जो अगर उसकी प्रवृत्ति देखें तो वो कपटी है, और इस कारण जो है इसको समझना और इसको परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता So it है। is not merely, she says, idleness of mind and the laziness of the body, it is the poisoning of one's will. और यहाँ पर इसलिए डॉर्थी कहती है कि जब आलसपन क्या करता है, ये आलसपन को आप परिभाषित करिए तो ऐसा नहीं कि आपका शरीर कमजोर पड़ रहा है या आप मानसिक रूप से आप बहुत तेज नहीं है, परंतु डॉर्थी कहती है कि ये आपकी इच्छा शक्ति को में जहर फैला रहा है, या उस जहर से वो आपकी इच्छा खत्म किया जा रहा She says है। the laziness creeps into your heart with the statement, I couldn't care less. और वो डॉर्थी कहती है कि आलसपन जो है वो आपके हृदय में लत की इस प्रकार लग जाता है जहां पर आप कहते हैं कि अरे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। From that attitude where you say I couldn't care less, you will move to ultimate despair and apathy. I don't care at all. और वहां से आप कहेंगे कि मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वहां से आप शुरुआत करेंगे, मगर क्योंकि आलस लत की एक दिक्कत है, जब लत लगती है तो आप उसके बाद कुछ समय बाद आप अपने जीवन में हर चीजों में कहने लगेंगे कि मुझे अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। Laziness therefore is not a lack of desire to do things. और इसलिए आलसपन जो है वो चीजों के करने की इच्छा की कमी नहीं है, It is an intense desire to look for your own comfort at the cost of others and even your own well-being. परंतु उसको परिभाषित आप कैसे करेंगे? ये आलसपन जो है ये आपके हृदय की तीव्र इच्छा है कि आप हर चीज में आप अपनी जीवन के आराम को ढूंढें। इसका अगर उसके लिए दूसरों को प्रभावित भी होना पड़ रहा है, उस दूसरों को दाम भी चुकाना पड़ रहा है, आपसे उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी इच्छा की तीव्र, आपकी दिल की तीव्र इच्छा यह है कि हर चीज पे आप अपने आराम को ढूंढते हैं। So what am I trying to say? I'm trying to say that this particular sin of laziness profoundly showcases human life as a utmostly selfish life. There is probably no other sin that showcases such kind of selfishness than the sin of laziness. इसलिए मैं कहता हूं कि आलस जो है, आलस में मानवता का जो स्वार्थीपन जो है वो सबसे ज्यादा उभर के आता है। बाकी पापों में शायद उतना उभर के ना आए, मगर आलस में सबसे ज्यादा उभर के आता है। Therefore, Bible calls this the sin of a sin which decays human soul. और इसलिए बाइबल जो है जब आलस के बारे में बातचीत होती है या परिभाषित करता है, बाइबल कहता है कि ये मनों को सड़ाने के लिए सड़ा देती है। And as someone said, when a devil finds a slothful person in heart, और इसलिए कहीं किसी ने बोला है कि जब शैतान जो है एक व्यक्ति को जिसके दिल में आलस है, he sends other sins to dwell in. वो शैतान जो है उसके दिल में बाकी पापों को उत्पन्न करता है, या जहां आलस है वहां से दूसरे पाप भी उत्पन्न होने लगते हैं। And another preacher said, laziness is so complex that it can be traced to a lazy person, like a person who is inactive, to a busy person, a workaholic, to a zombie. और यहाँ पर एक और व्यक्ति इस बात को परिभाषित करते हुए कहता है कि कई बार जब आलसी व्यक्ति के बारे में अपने मन में चित्रित करते हैं, जो हमने याद है ऑफसाइड में बोला था कि अगर आप देखिए इन शब्दों को डालिएगा कि ईर्ष्या हो गया या गुस्सा हो गया, इसके चित्र हम बना लेते हैं। वैसे आलस का चित्र हम पहला क्या सोचते हैं
आलसी आदमी जब होता है तो हम क्या सोचते हैं कि वो व्यक्ति आराम से कहीं पर लेटा पड़ा हुआ है, मगर ये व्यक्ति कहता है ऐसा शायद ना हो। शायद वो व्यक्ति कहीं पर या तो वो बिल्कुल ही आलस से कहीं पड़ा हुआ है, या तो एक व्यक्ति ऐसा हो जो हमेशा काम करने लगता है, हमेशा काम करते जाता है, या एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है। Okay, so let's define laziness. Laziness is the condition of human heart which neglects God-given good work with a heart of apathy. और अगर मुझसे पूछिए कि आलसी होने की परिभाषा क्या है, तो इसको मैं बड़े सरल रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। आलसीपन का अगर परिभाषा ये है कि एक ऐसा मानवीय हृदय है, एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर के दिए हुए अच्छे काम और कर्तव्यों को तिरस्कार कर देता है, और साथ साथ एक ऐसा दिल उत्पन्न करता है जो परमेश्वर के दिए कार्यों से उसका कोई लेना देना नहीं है। What is apathy? What is apathy? अगर आप मुझसे पूछिए उदासीनता या फर्क ना पड़ना से क्या मतलब है, There is an open drain which runs by the side of our society, और मेरे सोसाइटी जहां पे मैं रहता हूं उसके बगल में एक नाला बहता है, and because of the emission, the gases, the poisonous gases, the methane, it corrodes all the copper of every air conditioning equipment, whether it's a car, fridge, refrigerator or ACs. और इसलिए उससे जो क्योंकि नाला जो है वो खुला हुआ है, वहाँ से गैस उत्पन्न होता है, और उस कारण जितने भी एसी, या चाहे घर पे लगा हुआ एसी हो या आपके फ्रिज हो या गाड़ियाँ हो, उस सारे एसी का जो कॉपर जो है उसको वो बर्बाद करने लगता है। Now, the government and the administration knows about this. मगर कमाल की बात यह है, इतने बड़े समस्या के बाद भी वहाँ की जो लोग गवर्नमेंट है उनको ये बात पता है, सरकार को ये बात पता है, But there is no action. That is apathy. इतना मुश्किल हो रहा है, लोगों को इतना मुश्किल हो रहा है, उसके बाद भी सरकार इसका निर्वहन का कोई कार्य नहीं करता। उसे आप कह सकते हैं कि सरकार एक तरीके से कह रहा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। Therefore, someone said, laziness is that sin which believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, enjoys nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing for which it will die. डॉर्टी से इसको इस प्रकार परिभाषित करती है कि आलसपन क्या है। आलसपन अगर कहा जाए तो पहला, ये आलसी व्यक्ति किसी पे विश्वास नहीं करता, किसी चीज पे विश्वास नहीं करता है। दूसरा, आलसी व्यक्ति किसी चीज से उसे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, आलसी व्यक्ति किसी चीज को ढूंढने में या उसको जांचने में उसका जीवन उसमें वो व्यतीत नहीं करता है। वो दूसरों की चीज़ों में या जो जिससे दूसरों की भलाई हो सके उसमें भी वो उसका कोई उससे उसके जीवन में प्रभावित नहीं होता है। वो किसी चीज़ में आनंदित नहीं होता है, वो किसी चीज़ से घृणा नहीं करता है, वो किसी चीज़ में उद्देश्य नहीं पाता है, वो किसी चीज़ के लिए जीता नहीं है, और शायद वो मरता भी नहीं है आलसी व्यक्ति, क्योंकि उसमें भी उसको वो काम लगता है। Let's turn to Proverbs 13:4. Our What? first Bible verse for the evening. नीति वचन 14 उसकी चौथी आयत को मेरे साथ खोलिए। नीति वचन, The soul of a sluggard craves and gets what? Nothing. In other words, the soul of a sluggard craves nothing and gets nothing. नीति वचन 13 अध्याय, नीति वचन 13 अध्याय उसकी चौथी आयत, सबने खोल लिया? क्या लिखा है यहां पर? आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी आदमी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। The cause of laziness is that we crave for comfort without good work. और यहां पर अगर इसको देखा जाए तो क्या मतलब है कि हमें अच्छी चीजों की हमें मन पसंद तो है, हमें इच्छा तो है, परंतु उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी It's है। the idolatry of one's heart to crave for one's own comfort without doing any kind of work. मन का आप एक मूर्ति पूजा कह सकते हैं, जहां पर आप अपने जीवन में आप आराम तो चाहते हैं, परंतु उसके लिए आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। The devil becomes the enemy of your heart, wanting to keep you from doing that good productive work which brings
flourish into your life because you crave your comfort without wanting to act on it. और शैतान इसको कैसे इस्तेमाल करता है, वो आपको इस आलस में और डुबोने की कोशिश करता है कि वो कहता है कि ये काम करने से फायदा नहीं, और उस आलसपन के कारण आप चाहते तो अच्छी चीजों को हो, आप अपने जीवन में अच्छी चीजें चाहते हो, वो आराम चाहते हो, परंतु शैतान उसके लिए आपको काम करने के लिए राजी नहीं करता है। Laziness is that tool in the hand of Satan, in the hand of the devil, who wants to keep us from doing any kingdom work which brings a productive flourish to the kingdom of God. Please remember that. It is an affront to the kingdom work of God. तो इसको अगर हम परमेश्वर के राज के रूप में देखें तो शैतान के पास सबसे बड़ा शस्त्र अगर कुछ है तो वो हमारे जीवन में आलस को उत्पन्न करना। उस आलस को जैसे शैतान उत्पन्न करता है, हम लोग परमेश्वर के राज के लिए काम करने से चूक जाते हैं, हमें पसंद नहीं है, हम नहीं करते हैं, इसलिए हम राज के करीब करीब विरोध में खड़े हो For जाते in हैं। the economy of God, every work is a kingdom work. क्योंकि अगर परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में आप देखिएगा, परमेश्वर के लोगों के हर कार्य जो हैं उसके राज्य के कार्य हैं। Please remember that. Every work is what? Kingdom work. Devi, what do you work as? भूल गए? Supply chain manager, supply chain, logistics, Logistics. Do you see that as a kingdom work? not yet. Devi's supply chain managerial role in his particular corporation or a company is a kingdom work. अगर And so is Padma's role as a homemaker at home. It is kingdom work. तो अगर मैं देखूं तो डेवी जो है, जो संचालन लगा हुआ, सैन्य संचालन में उसका काम है, वो वहां पर अगर कार्यरत है तो डेवी आज से अभी से उसको परमेश्वर के राज्य का कार्य माने। उसी प्रकार और उसी तरीके से पद्मा जब घर में काम करती है, अपने परिवार के लिए काम करती है, वो भी उसी वक्त परमेश्वर के राज का कार्य है। See, God supplies all our needs. You're doing God work, right? Okay. So let me ask this evening, what keeps us from this good work? तो What is the particular sin that keeps us तो- from doing this good kingdom work? तो Whatever we do, as young children going to school, that is your kingdom work. That is God work. As college going students, it's your God given work. As professionals working in your respective companies or corporations, it's God given work. तो परमेश्वर का दिया हुआ कार्य आपके जीवन में क्या है, तो उसको हम थोड़े हिसाब से देखें। बच्चों, आपको अगर स्कूल जाना है और आपका स्कूल जाने का काम है तो उसको परमेश्वर का दिया काम मानिए, और हर एक चीज जो आपको रोकती है उसको आप समझिए। उसी प्रकार जो लोग कार्यरत हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उसको आप उस प्रकार मानिए कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो वो करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप कॉलेज जाने वाले हैं तो कॉलेज जाने से आपको जो चीजें रोक रही हैं, वहां पर जो आपको काम करना है उससे चीजें रोक रही हैं, उसको समझना आपके जीवन में बहुत So जरूरी the है। question is, what keeps you away from doing this good work? What are those things that will keep you from reaching your efficiency at doing this work? तो अगर परमेश्वर ने हर कार्य जो हम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य है, तो ये सवाल जो है लाजमी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इस कार्य करने से रोकती हैं। सवाल, We yeah. find it routine and there is no change of the excitement. We find it routine. So you're talking about monotony, right? तो पहला ये है कि हम लोग एक ही चीज बार बार सुबह उठो यही करो, बार बार हर सुबह एक ही काम करते करते आपको बोर लगने लगता, आप करते हैं इसमें क्या मजा है, इससे क्या फायदा हो रहा है। Task is overwhelming. Okay. Our work is God given, but then the environment that we operate is not necessarily always. So our effort is mostly spent on mitigating those factors So rather than focusing on the God. So it's not conducive environment, and therefore you're trying to Yeah, make it focus function. is more on the environment rather than on the. But my question is,
I mean, in what you all said, there is an efficient work that you want to do, and there are challenges. My question is, okay, this is to a lazy person. My question is, what is that activity or a seeking of comfort that you do which keeps you from fulfilling your responsibility? Does that make it clear? So work can be overwhelming, work can be routine, work conducive environment. So all those mitigating factors affect, but it's still working. My question is, what is that personal thing that keeps us from, say, doing our work properly? So इसको अगर या Huh? Or Or screens? Screens? The workplace, boss is not always happy. Huh? At the workplace, boss is not always happy. नहीं, बॉस का छोड़ दो. अच्छा मैं हाँ, let me ask एक और बार ये सवाल हाँ? The fear of getting more work. Okay. Comfort zone. एक और बार इसको पूछना चाहता हूँ. देखिए जब हम लोग इस बात को परिभाषित कर रहे हैं तो इसमें एक पिता का जो काम जो है, कार्य जो है, उसको निभाना, उस कार्य को निभाने में कौन सी चीज़ें हमें रोकती हैं? एक पत्नी के रोल में या एक घर पे अगर हम रहते हैं उसके रोल में, वैसे आप हर जो भी आप करते हैं, जो भी किरदारों को आप निभाते हैं, उन चीज़ों को पूर्ण तरह जिस प्रकार वचन कहता है वैसे करने से कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं? ये सवाल है. उन चीज़ों में करने में तो हमें चुनौतियां आएंगी, मगर ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो हमें पता है कि ज़रूरी है कि एक पिता होने के नाते मुझे ये करना है, या एक पति होने के नाते मुझे ये मेरा परमेश्वर का दिया हुआ कर्तव्य है? मैंने कौन सी चीज़ें हमें रोकती हैं? Procrastination, yes. तो पहला है कि हम लोग हर चीज़ को यार कल कर लेते हैं. So, in my younger days, you know, when my parents would say, पढ़ लो, पढ़ लेंगे, you know, कर लेंगे, हो जाएगा, देखते हैं, God willing. तो हम लोग को जैसे कोई काम मिलता है तो हम लोग बचपन में क्या, आज भी हम लोग यही करते हो कि कोई काम देता है, या कर लेंगे, या कल कर लेंगे, या अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो हम कर लेंगे. हमें टालने की, टाल मटोल करने की हमें आदत सी एक बन जाती है. Okay, let me tell you my challenge. This is how laziness shows in me. ठीक है? अब ये मत बोलना कि तुम lazy हो, कोई lazy नहीं. So while preparing for this, getting ready for this, what occupied me was precisely not the topic of laziness. I'll tell you what occupied me. You know what occupied me? Huh? US इलेक्शन. Male ego. US इलेक्शन. US election. जब मैं इस आज शाम के लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे ये तैयारी करना है, परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरा काम है, ये कर्तव्य है मेरा. परंतु जब मैं तैयारी कर रहा था तो इस बात को समझना, पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था. मगर मेरा जो मन था वो US इलेक्शन, वहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रम्प जीत रहा है, हैरिस जीत रही है, उसमें ज़्यादा लगा हुआ था. So after Trump's victory, it is almost 10 days, and still I am stuck with this. Like, okay. So now my next padav is the Maharashtra elections, and in between there is a bipole elections that has happened in Wayanad and other districts. तो अभी ट्रम्प जीत गए हैं, उनको ज़्यादा फर्क पड़ रहा, हमें पड़ता नहीं है, मगर फिर भी हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं. मगर अब साथ साथ महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उस पर ध्यान, या वायनाड में जो बाइपोल हो रहा है उस पर मेरा ध्यान लगा रहता है. कितने लोग बिग बॉस देखते हैं? कोई हाथ नहीं. Anybody? Big Boss is another way of occupying yourself with absolutely nothing. बिग बॉस क्या है कि अगर आप उसको देखिएगा तो वो उसका बहुत बढ़िया तरीका है कि बहुत कुछ हो रहा है मगर
उससे आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, मगर आप फिर भी उसमें लगे हुए हैं। ये सीरीज कौन कौन देखता है? नेटफ्लिक्स सीरीज ना। किसी का हाथ पीछे क्योंकि वो नेटफ्लिक्स नहीं देखता, दूसरे में देखता। हाँ. So this is what I want to tell you guys, that, and I'm guilty also. So one of the things which I'm trying to do is to not watch series. So the problem with series is it's going to consume so much more of your time. Like a movie will run for say 1.5, 2 hours max out, but a series is going to take, because you cannot stop binge watching. You will binge watch on a series. It is made like that. It is- a hook at the end Yes. of the episode, Yes. so that we have to watch the starting of the next. That's from the horse's mouth, because he's into market research. So he understands. He does the hook and the click, you know. So the point here is that these are things, benign things. I mean, I cannot stand here and say watching series is wrong. I cannot stand here and say Big Boss is wrong. But how we use these things to supply our laziness is what we need to watch out for. तो टीवी सीरीज हो गया, उसको देखना, यहाँ पे खड़े होकर हम इस बात को न्याय के रूप में नहीं कह सकते कि टीवी सीरीज देखना गलत है या मूवी देखना गलत है, मगर आप ये समझिए जिस प्रकार ये सब बनाया जाता है, वो बनाया ही इसलिए ऐसे जाता है कि ये आपके समय का पूर्ण इस्तेमाल कर सके, पूर्ण समय आप उसमें लगे रहते हो। होता क्या है, जब आप उसका सेवन शुरू करते हैं या हम उसका सेवन शुरू करते हैं, तो हम बाकी चीज़ों पर ध्यान, जिस पर हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को हम निभा नहीं पाते हैं या उनमें से चीज़ों को हम निकालने लगते हैं। So a pastor lays out a trend when it comes to laziness. He says there are 4 stages to laziness. और एक इस पे वक्तव्य लिखने या टिप्पणी करने वाले इस बात को इस प्रकार कहते हैं कि 4 श्रेणियां हैं या 4 पड़ाव होते हैं अगर आप आलस के बारे में सोचें। So you start with laziness, which is I don't feel like it. तो आप शुरुआत करते हैं कि अरे मेरा मन नहीं कर रहा है। From that you go to procrastination. आप उसके बाद टाल मटोल की तरफ बढ़ जाते हैं। That's the next stage of laziness. जो दूसरा पड़ाव है आलस का। And the third stage of laziness is despair. I cannot do it. It's impossible. और तीसरी बात आप कहते हैं कि अरे ये मेरे से मुमकिन नहीं है। And the fourth stage of laziness is complete indifference, apathy. That's the word. और उसके बाद चौथे में आप पहुंचते आपकी जीवन में निरस्ता आ जाती है। आप कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। So turn with me. Let's look at first stage, laziness. I don't feel like it. तो पहली चीज को हम देखते हैं जो है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। That is, there's a disinclination towards any kind of activity. तो इसका पहला जो पड़ाव है वो ये है कि मुझे करना है उसको करने में ही मजा नहीं आता। Ecclesiastes 10:18. सभा उपदेशक 10वीं अध्याय 18वीं आयत को मेरे साथ खोलिए। If you're not familiar, where is it in the Bible? Go to your contents page, check the page number, go to the particular book. सभा उपदेशक 10वीं अध्याय उसकी 18वीं आयत इस प्रकार लिखा गया है, आलस्य के कारण शत की कड़ियां दब जाती हैं और हाथों की सुस्ती से घर छूता है। Laziness is a disease which keeps expanding its reach over our life. और आलस जो है वो एक बीमारी है जो हमारे जीवन में हावी होते ही रहता है, हमारे जीवन को काबू में करने So लगता what is the है। preacher saying in this passage? He's saying that the laziness is such that it makes the roof sink in. और यहां पर आयत में क्या लिखा है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो छत को दबा देती है। It's a cancer to our soul. वो हमारे जीवन या हमारे आत्मा में जहर की तरह फैलता है और कैंसर हो जाता है। Because this lazy person is a non-contributor. क्योंकि ये जो आलसी व्यक्ति जो है वो किसी चीज में वो अपने आप को, अपने हाथों को नहीं डालता He's है। a non-contributor at home, वो घर में किसी चीज में हाथ नहीं बटाता है। and he is a non-contributor at church. वो कलीसिया में किसी चीज में हाथ नहीं बटाता He's है। a non-contributor at his workplace. और वो अपने जहां पे वो कार्यरत है वहां पे भी वो हाथ नहीं बटाता है। Return to Thessalonians, 2 Thessalonians 3:6. आइए मेरे साथ दूसरा तेसलोनियों 3वीं अध्याय 6वीं आयत को खोलिए। Paul is warning this church and people who are idling. और यहां पर उनको बोलता है उनको पौलुस बोलता है जो लोग आराम से बैठे हुए हैं। 2 Thessalonians 3:6. दूसरा तेसलोनिका उसकी 3वीं अध्याय 6वीं आयत, He says, yeah. हे भाइयों
हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता। अनुचित। English Bibles carry the word idleness, right? Yeah. So in Hindi is probably not translated it well. So Paul says, I command you. Translator was lazy. Yeah. Paul says, I command you. यहां पर पौलुस कहता है कि मैं तुमको आज्ञा देता हूं In the name of the Lord. परमेश्वर के नाम में। You see, it's a serious commandment. प्रिय जीसो देखिए, ये बहुत, अगर इसको समझिए, परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा है। You know, the whole of the Bible, commandments, listed, orders, command, imperatives are probably 15 to 20% of the whole of the Bible. और बाइबल को अब जब पढ़िएगा तो जहां पर लिखा गया कि ये परमेश्वर ने बोला है, ये 10 से 15% है। So in that you have one command: keep yourself away from the brother who is walking in idleness. और यहां पर उसमें से एक जो आज्ञा पौलुस यहां पर लिखता है, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो आलस्य से चलता है। Why? Because laziness makes this person incapable. क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो किसी चीज में उससे कोई काम नहीं बन पाता है। And this act of laziness is act which is a sin which stems out from rejecting God and God's work. It's an outward rebellion against God which goes unnoticed at times. और क्योंकि वो इसलिए कहता है क्योंकि आलसपन का जो शुरुआत जो है, जो स्रोत जो है, वो वहां से शुरू होता है जहां पर ये व्यक्ति परमेश्वर और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बड़ा नहीं मानता है। He says, I don't care about the others. ये व्यक्ति कहता है कि मुझे परमेश्वर और परमेश्वर बाकी लोगों से मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। I care for my comfort. मेरे जीवन का जो आराम है वो सर्वोपरि है। And therefore he desperately controls his environment, his life. और इसलिए और उस कारण जो है वो अपने जीवन को और जीवन के आसपास की हर चीजों को उस प्रकार ले चलता है जिससे कि उसको पूर्ण आराम मिले। And when you know that you are in a hard control of your life, please note this, okay? इस बात पर ध्यान दीजिए, That when you take hard control of your life, जब- where nobody else can enter your life, जब आप अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं जहां पर आप अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहते हैं, आप किसी और को आपके जीवन में प्रवेश नहीं देते हैं, that is one more sign of laziness. वो आलस का एक दृष्टांत के रूप में आप देखिए। When you take a hard control of your life without letting anyone come into your life, it tells you, it's a sign that you are lazy at the core of your heart. और जब आप दूसरों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देते हैं, एक संबंध नहीं बनाते हैं, प्रिय जीजों, उसको आलस का आप एक दृश्य के रूप में देखिए। So when you say, I don't care for anything, तो आप जब कहते हैं कि अरे मुझे लोगों से या चीजों से फर्क नहीं it पड़ता है, starts impairing your soul. वो आपकी आत्मा को सराहना शुरू कर देता है। Turn with me to Hebrews 5:11, and sorry for the references, but we need to go through these references. आप इब्रानियों किताब को मेरे साथ खोलिए, Hebrews 5:11. इब्रानियों 5 उसकी 11वीं आयत। इस प्रकार लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। In English it says you become dull of hearing. यहां पर लिखा है क्योंकि तुम्हें या ऊंचा सुनने लगे हो, या So a lazy person leads to a situation where he is not hearing, he or she doesn't hear. और आलस को आप इस प्रकार अपने जीवन में प्रत्यक्ष होते हुए देखिए जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सुनने में आपकी दिलचस्पी कम होने लगती है। So when you take hard control of your life, आप कम क्यों करने लगते हैं? क्योंकि आप अपने जीवन को पूर्णतः नियंत्रित करना and चाहते you हैं, don't let anyone come inside your आप life, दूसरों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देते हैं, then what is happening is you are no more listening. आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरों की बात या परमेश्वर की बात को सुन नहीं रहे हैं। And when you stop listening to others, और इसलिए जब आप दूसरों की बात सुनना बंद कर देते just हैं, because you want to be comfortable in your
economy in your zone. क्योंकि आप अपने जीवन में आराम चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई आपको आके बोले कि अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। आप अपने जीवन को पूर्णतः नियंत्रित रखना चाहते हैं। Then that leads not just to cognitive disability but also a certain level of spiritual resistance. You start resisting God's word. प्रिय चीजों, आप पहली चीज तो सीखना बंद कर देते हैं और दूसरी चीज आप आत्मिक रूप से परमेश्वर से एक बलवा अपने जीवन में शुरू कर देते हैं। They do not want the gospel to be at work in their life. आलस का पहला जो पड़ाव जो है, वहां पर आप सुसमाचार को अपने जीवन में प्रभावित होने से रोक करते हैं। And therefore you keep that control, and as you keep a hard control, you become an impenetrable soul. और जब आप अपने जीवन को इतना नियंत्रित करने लग जाते हैं तो आपके जीवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता है। Turn with me to Proverbs 26 verses 13 to 16. आप नीति वचन 26वीं अध्याय को मेरे साथ खोलिए। 13 to 16. 26, 13 to 16. 13वीं आयत से 16वीं आयत को मेरे साथ पढ़िए। आलसी कहता है मार्ग में सिम है, चौक में सिम है। जैसे किवाड़ अपने चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपने हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। और आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। So what is happening? Laziness, when it impairs your soul, it makes you an impenetrable person. और जब आलस आपके जीवन में क्या कर रहा है, आलस आपके जीवन में आपकी आत्मा को इस प्रकार बना देता है जहां पर लोग आपसे बात भी नहीं कर पाते हैं। So what is the lazy doing here? The lazy man doing here? यहां पर जो व्यक्ति जो है, जो आलसी व्यक्ति क्या कर रहा है? What is he doing? Come on guys. What's he doing in this passage? हाँ? हाँ, और बहाने ऐसे नहीं बना रहा है कि बहाने बना रहा है। He starts believing that there is a lion in the street. और यहां पर आलसी व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि सही में वो अपने जीवन में ऐसा सोचने लगा है, चित्र करने लगा है कि वो झूठ को भी सच मानते हुए कहता है कि सही में एक सिंह बैठा हुआ है रास्ते पर। There's an alternate reality that he creates and he believes in that. तो वो आलसी व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन के आराम के लिए झूठ को सच मानने लगता He है falls into his own imagination. और अपनी जो कल्पनाएं जो वो बना चुका है उसी में रहना लगता है। He is delusional. और वो एक ऐसी जीवन को, काल्पनिक जीवन को वो शुरू कर देता When है। you become delusional, when you become like this, when you over rationalize and start believing your rationalization as the reality of your life and your surroundings, you become an impenetrable soul. And where is this coming from? Laziness. आप जब अपने जीवन में भ्रम के जीवन में अपने आप को जीने लगते हैं, उसमें ही अपने आप को पाते हैं, उस भ्रम को आप इतना ऊपर ले जाते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि कोई उस भ्रम को तोड़े नहीं, और इसलिए आप लोगों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहते हैं। वो शुरुआत कहां से होता है? वो एक आलसी मन से यहां शुरुआत होता है। If there is a sin which is most difficult to kind of accept, which is the sin? I'm telling you, you will accept the sin of pride also, greed also. Gluttony तो फिर accept करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही मान लेंगे। But if I tell you or you tell me that I'm lazy, you and I will resist the most. हमको अगर कोई बोल दे कि भाई साहब आप थोड़े से घमंडी हैं, तो शायद हम एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी ले लें। या हमको बोल दें कि आपकी जीवन में ईर्ष्या है, तो हम थोड़ा सा ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। मगर किसी ने गलती से ये बोल दिया कि भाई साहब या बहन आप आलसी हैं, हम बोलते हैं ना कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। I mean, even that we'll pride about, but no one will say I'm a lazy person. तो हमें से कोई नहीं है जो इस बात को खुले में कह दे, या कोई और कह दे और हम मान ले कि मैं आलसी व्यक्ति हूं।
इसको कहना और मानना बहुत ही मुश्किल काम है। So laziness impairs your soul, makes you impenetrable a soul, and lastly, laziness makes you immovable. और इसलिए हम लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे जीवन में आलस जो है हमारी आत्मा को सड़ाने लगता है। उस कारण हम ऐसे लोग बन जाते हैं जो बाकी लोगों से हम संबंध नहीं चाहते हैं। हम ऐसे जीवन को बनाते हैं जहां पर हम दो लोगों की प्रवेश बंद कर Look देते at हैं। verse 14. 14वीं आयत को जरा देखिए। 26, Proverbs 26, verse 14. What is happening in verse 14? 26 नीति वचन 26 मेरे साथ खोलिए, उसकी 14वीं आयत में क्या हो What is रहा है? happening? हाँ? हाँ? देखो बिस्तर में नहीं पढ़ा है, पर बिस्तर में पढ़ा है, but what is the writer trying to hint at? This is where observation makes a strong impact. What? यहाँ पे writer, what is the writer trying to indicate? Look at the passage. Look at verse 14. Tell me what is the writer trying to indicate? हाँ? There is a motion, right? आप देख रहे हो? हाँ? जैसे आप दरवाजे को ये नहीं बोल सकते कि वो काम नहीं करता है। जब वो चौखट पे रोज खुलता बंद होता है तो दरवाजे को आप नहीं बोल सकते कि यार दरवाजा आलसी है, वो उसका काम ही वही है, वो अपने चौखट में घूमता रहता है। There is motion but no productivity. Do you understand what is परंतु happening? यहाँ पर वचन लिखने वाला हमें क्या कह रहा है कि जैसे क्या कहता है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे ही आलसी अपने खाट पर करवटे लेता है। कहने का मतलब है कुछ काम तो कर रहा है मगर उस काम से परमेश्वर के राज्य या जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। शायद उसका आराम बढ़ जरूर रहा होगा। Lazy people make a lot of noise. जो आलसी लोग जो हैं वो अगर आप उनको बड़े आराम से उनको हम देख सकते हैं, वो हर जगह बहुत बोलते हैं या बहुत सारा काम चीजों को दिखाते हैं। हाँ? Yes. He's resting with restlessness. So we can make a lot of noise. We can do a lot of charity. We can be a lazy church. Do you agree with that? It's not just a lazy person, a lazy community also. तो जैसे शुरुआत कहाँ से होती है? एक आलसी आदमी आलसी परिवार के साथ शुरू करता है। आलसी परिवार क्या बनाते हैं? आलसी कलीसिया बनता है। तो बहुत दूर नहीं है, तो हमारा जो आलसीपन जो है वो कलीसिया में दिखने लगता है। So what happens? So laziness impairs our soul. It makes us impenetrable, and then it makes us immovable. Now laziness ultimately makes us inefficient. Look at verse 15. 15वीं आयत को देखिए मेरे साथ। The sluggard buries his hand in the dish. It wears him out to bring it back to his mouth. नीति वचन कहता है, कहने लिखने वाला कहता है, आलसी अपना हाथ जो है थाली में डालता तो है परंतु इतना आलसी है आलस्य के कारण उसका हाथ वापस मुंह तक नहीं पहुंच पाता। नहीं, वो खा ही नहीं रहा। लेखक हमें चित्रित करके क्या बताना चाहता है? What is the writer trying to tell us? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दाख मुर्गा करे सबके नाकाज। तो लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक क्या? What is the writer trying to say? What is the writer trying to say? Inefficient. No productivity, nothing at all. Completely inefficient. यहाँ पर वचन का जो लेखक है वो इस बात को हमको कहना चाहता है कि शायद खाने में हाथ डाल रहा है मगर खाने में हाथ डालने से किसी को कुछ फायदा हो रहा है क्या? उसका कोई प्रभाव है? तो आलस जो है हमें अप्रभावी बनाता है, हमको हर चीज में अप्रभावी बनाता है। I want you to take stock of your own lives. इसलिए अभी जो इस क्षण में प्रिय अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप और हम अपनी जीवन को जरा उसमें विश्लेषण करें। So for the work you do, is there productivity? Is there an advantage to others that you serve? आप जिस काम में लगे हुए हैं क्या उससे परमेश्वर का राज्य, कलीसिया, बाकी लोगों को उससे प्रभाव हो रहा है कि नहीं? ये सवाल आपको और हमें पूछना जरूरी है। Inconsequential. कॉन्सिक्वेंस
Okay, okay. Is there a consequence to what you're doing? Is your life consequential? Okay, if it does, okay, is your life consequential? As in, does it impact? Does it leave uh, Tangible. a flourishing advantage to your people, to your family, to your church? That's the question that we can ask. तो ये सवाल हमको पूछना ज़रूरी है जब हम आलस के बारे में सोच रहे हैं। आलस को कि क्या मेरे जीवन में जिस कामों में मैं लगा हूँ, जिस चीज़ों को मैं कर रहा हूँ, जो कर्तव्य मुझे निभाने हैं और जो मैं निभा रहा हूँ, उससे क्या परमेश्वर के राज्य में प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? Because- क्या परमेश्वर का कलीसिया, परमेश्वर की जो कलीसिया जो है उससे प्रभावित होकर ऊपर उठ रही है कि नहीं? Because look at verse 15. He starts something, but he's unable to finish. यहाँ- That's the height of inefficiency. यहाँ पर आलसी जो है इतना प्रभावी हो जाता है कि वो चीज़ों को शुरू जरूर करता है परंतु उसको खत्म नहीं कर पाता है। Yeah. I mean, obviously, matlab, it's going to hurt him at the end of the day, right? Yeah, that's true. So, first stage is laziness. That's what we saw. Laziness has these components where it impairs your soul, it makes you impenetrable, it makes you immovable, and finally it makes you inefficient. पहली चीज हमने देखी कि आलस में अगर देखेंगे तो वो आपके जीवन को सड़ाना शुरू करता है। दूसरा, आप अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं जिससे कि बाकी लोग आपको कुछ बोले ना, आपके जीवन में प्रवेश ना करे। उससे क्या होता है कि आप हिलना डुलना बंद कर देते हैं, आप जीवन में काम कर बाकी जिससे दूसरों का फायदा हो जाए वो चीजें पूर्णतः आप बंद कर देते हैं। आखिरकार उस कारण आप अप्रभावी बन जाते हैं। आपके जीवन के जो कार्यों से, कामों से, कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के लोगों को उससे कोई लाभ नहीं उत्पन्न So होता when है। you become lazy like that, the next stage is procrastination. और इसलिए आप पहले जब आलस शुरू करते हैं, आलस से शुरू करते हैं और इन पड़ावों से आप जब अपने जीवन को ले जाते हैं तो उसका दूसरा श्रेणी आप पहुंचते हैं, आलस का दूसरा श्रेणी जहां पर आप टोल मटोल करने लगते हैं, टाल मटोल करने लगते So हैं। if you send me a message, अगर आप मुझे कोई मैसेज भेजिएगा and if my reply would say, I mostly do it on emails, and I would reply, I'm extremely sorry for procrastinating over my reply. If that is the line I'm using, और अगर मुझे आपने कुछ ईमेल भेजा और उसका जवाब में मैंने आपको लिखा कि मुझे माफ़ करिए और कि मैं इसमें टाल मटोल कर रहा हूँ। Mike, I don't know, some of us know Mike. He sent us a mail recently, and underneath in my reply I wrote, Mike, I will respond to you shortly. Now Mike is thinking, Ashish is thinking about the query that Mike has sent, but I have thought nothing on this query, right? But I have written to him, what? I'm going to shortly. हमारे बीच में एक माइक जो कभी कभी आते रहते हैं, माइक और सैंडी, उन्होंने एक ईमेल भेजा। ईमेल को देखा और मैंने फट से जवाब दे दिया कि हाँ मैं आपको सोच के बताता हूँ। मगर क्या मैं सोचा उस ईमेल के बारे में, ईमेल में क्या था, मैंने कुछ नहीं सोचा है, मगर उससे पहले ही मैंने जवाब दे दिया कि मैं सोच के बताता हूँ। जवाब मैंने कल दिया है और मुझे अभी याद आ रहा है जब मैंने ये पढ़ा। So next stage of laziness is procrastination. दूसरा जो श्रेणी जो है, जो पड़ाव जो अगर आप कह लीजिए, वो है टाल मटोल। We can be driven by a lot of things, हम लोग को बहुत चीज़ें हमको प्रभावित कर सकती हैं, but we do not accomplish it. मगर हम लोग जो हैं उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। उसको एक तरीके से उसके जहाँ पर उसको लेके जाना है वहाँ पर हम उसको लेके नहीं जा पाते हैं। You know, my list of reading books is really big. You know, I have this dream of reading so many books. अगर मुझसे पूछिए तो मेरी जो सूची जो है किताबों की जो मुझे पढ़ना है वो बहुत लंबी है। मेरा ख्वाब है कि मैं इन सब को पढूं। And recently I have embarked on a journey reading books recommended by Tim Keller, so I am reading those books. But US election आ गया ना बीच में। So now I will watch US election के पर के टिप्पणीज and procrastinate over my commitment to read the books.
और अगर मेरा कर्तव्य है जो मुझे एक पासवान के रूप में, परमेश्वर के वचन के प्रचारक के रूप में जो कार्य को मुझे करना है, उसके लिए किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। परंतु मैंने क्या किया है, उसको मैंने अभी हटा दिया है, क्योंकि मेरे लिए अभी जो है यूएस इलेक्शन और वहाँ पर क्या हो रहा है उनकी टिप्पणियों को देखना मेरे लिए अभी ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हो चुका है, और उस कारण जो मेरे जो कर्तव्य है उसको शायद मैं नहीं निभा So पा रहा हूँ। I'm going to ask. There's a quote on procrastination. To procrastinate is to be entitled. It is arrogant because it assumes there will be a later. It assumes you have the discipline to get to it later, despite not having the discipline. Yes, definitely, definitely. And I can tell you that procrastination, probably we all, I don't know about you guys, but somewhere when I evaluate my life, I see at a stage where I am easily procrastinating just because I have other distractions around me to do and move away from the main work. जब हम लोग चीज़ों को टाल मटोल करते हैं तो पहला हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये हम कर सकते हैं, तो पहले ही जो कार्य जो हमें दिया गया है उसको हम छोटा बना देते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि इससे ये बाद में भी हो सकता है। तो वो हमारे जीवन में उस प्रकार से ही हम सोचने लगते हैं। So I want to ask you this evening, as a spouse, as children, as youth, as church members, what is there? What is the point in your life where you think you are procrastinating? You can write it, don't have to share it with me, but think about it. Which area of your life you think are you procrastinating? वापस उस बात को जरा सोचिए, जब हम यहाँ पे बैठे हैं हम लोग अलग अलग किरदारों को निभा रहे हैं। हम एक पति के रूप में हो सकते हैं, पत्नी के रूप में हो सकते हैं, एक माता पिता के रूप में हो सकते हैं, बच्चों के रूप में हम यहाँ बैठ सकते हैं। अलग अलग कर्तव्यों को हम निभा रहे हैं। हमारे कर्तव्य में ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जिन पर हम टाल मटोल कर रहे हैं और उनको हम रोक रखे हैं, जिससे हम बार बार उन चीज़ों को पूर्ण करने में, उन कर्तव्यों को करने में हम काम नहीं कर पा रहे Turn हैं। with me to Proverbs 10:26. मेरे साथ नीति वचन 10 उसकी 26 आयत को देखिए। 10:26. नीति वचन 10 उसकी 26वीं आयत। जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं, वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजता है। Have you ever gotten smoke in your eyes? कभी आंखों में धुआं लगा है? A lazy person is like, having a lazy person around you is like having smoke in your eyes. So if you are a lazy person, if we are a lazy people, we are not the salt of the world, not the light of the world, but the smoke in the eyes of the people. अगर हम आलसी लोग हैं तो हम लोग दूसरों के लिए उनकी आंखों में धुआं के रूप में हैं। The tendency is to believe that we can do it tomorrow, but we lack the discipline to complete it today. हम लोग को लगता है कि हम ये कल कर सकते हैं, पर प्रिय जीजों हमारे अंदर वो अनुशासन ही नहीं है जो जरूरत है कि हम प्रभावी रूप Why? से उस कार्य को आज कर Why? पाएं। Because in our heart we have believed that it is okay, that this God-given responsibility, this is God-given responsibility, and I need to complete it today, but we have okayed it. चलता है, हो जाएगा। प्रिय जीजों, आपको जो कार्य कर्तव्य दिया गया है, जैसे वैसे बोला गया है, एक पति के रूप में, पत्नी, पिता, माता, जिस बच्चों के रूप में, पढ़ाई के रूप में, आपको जो परमेश्वर ने, वो परमेश्वर का दिया हुआ कर्तव्य है आपके जीवन में। और अगर आप कहते हैं उस कर्तव्य को लेकर आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं, कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, तो आप परमेश्वर के खिलाफ, वो परमेश्वर की कर्तव्य को आप तिरस्कार करने लगते हैं। Proverbs 18:9. 18:9. नीति वचन 18:9. नीति वचन 18 उसकी 9वीं आयत को देखिए। जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। The sluggard, the one who slackens in his wife is one who slackens in his work. In his work is a brother to who destroys.
जो काम करने में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले या नष्ट करने वाले का भाई ठहरता है। My dear church, procrastination is a thief of time. प्रिय We जी, do not have time. कलीसिया वालों के यहाँ पर बैठे सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, टाल मटोल करना जो है वो समय को चुराना है। We are good at making excuses, all of us, including me. हम में से सब जो है बहाने मारने में, बहाने बनाने में, कल्पना भ्रम की जीवन में जीने में हमें बड़ा अच्छा I लगता am है। telling you, I can give you so many good excuses. मैं आपको ये So बात many. And I can convince you within a minute. मैं आपको आज बोल सकता हूँ, मैं बहुत सारे बहाने बना सकता हूँ और 1 मिनट में आपको मैं बता भी सकता हूँ, समझा सकता हूँ। हंस क्यों रहे हो, बताओ? I can't convince you. Obviously, I'm living with you. How will I convince you? Huh? I'm telling you, we all are operating on the plane of giving excuses, procrastinating, whether it is household work, whether it is our church work, whatever. As a church, we have set into a mode of giving excuses for what we must do. हम लोग को जो परमेश्वर ने जो काम दिया हुआ है, कर्तव्य दिए हुए हैं, उसको हम निभाने में पीछे हो चुके हैं। हम लोग टाल मटोल की जीवन को हमने अपना लिया है। हमने कह दिया है परमेश्वर तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारे काम से मुझे लेना देना नहीं है, ये मैं आज तो नहीं करूँ, इतना महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारा दिया हुआ काम, इसलिए मैं आज वो नहीं करूँगा या कल भी नहीं करूँगा। इसको तुम्हारे दिए हुए कर्तव्यों को मैं टालता जाऊँगा और वो कर्तव्य हो सकता है कि मुझे एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा पत्नी बनना है, एक अच्छा माँ बनना है, एक अच्छा पिता बनना है। इन सारे कर्तव्यों को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उनको मैं ठेलता जाता हूँ, जिससे क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिया कर्तव्य से मुझे कोई लेना देना नहीं। And something, at the core of this is also that I have seen for myself that if it is something that I know how to do, I see myself quickly getting to it. Like for example, as a researcher, I know that piece in terms of my work. I know I'll quickly get to it. But if it is something which I need to think a bit and I have to work it out, that's when procrastination has a higher element. Which means I am trying to ignore the elephant in the room. And so procrastination has a huge partner in, fearing that elephant and keeping on feeding the elephant instead of cutting the elephant down and start doing that work. So the point is that we are selective in choosing the challenges that come to our work. Very selective. But when it comes to true work, we do not want to take that challenge. हम इस प्रकार देखिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना जो है, हर काम जो हमें दिया गया है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। कई बार हम लोग वही काम को, शायद किसी ने बोला भी था, कंफर्ट जोन, जो काम हम करते हैं वो अगर हमें दे दिया जाए हम वो शायद करते रहेंगे, मगर एक ऐसा काम जो हमारे कर्तव्य में आता है परंतु हम वो करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम उत्पन्न कर सकता है, उस काम को हम नहीं हाथ लगाते हैं। वो उससे शायद परमेश्वर की कलीसिया को बहुत दिक्कत हो जाए परंतु हम उससे दूर रहना चाहते हैं। The third stage is despair. और तीसरा जो पड़ाव जो है वो है जहां पर हम निराशा उत्पन्न करते I हैं, can't. मैं नहीं कर सकता हूं। It's a stage when things spiral out of control. और वो एक ऐसा ही अवस्था है जहां पर चीजें जो है आपकी नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं, Where things become like a mountain and then impossible to do it. और क्योंकि आपने टाल मटोल कर रखा है, आपने हर चीज को ढकेलना शुरू कर दिया है, तो आप क्या करने लगते हैं, आप तब आपकी जीवन में तीसरा क्षेत्र शुरू हो जाता है जहां पर आपको सारे कार्य जो हैं बहुत बड़े लगते हैं। I know of a person मैं एक व्यक्ति को जानता हूं who will leave her work unattended till the last. वो अपने काम को जो है एकदम आखिरी क्षण तक नहीं करेगी या करेगी, And during exam days, then she's all over the place. She cannot handle it. और जब एग्जाम आता है तो वो पागलपन हो जाता है और बाकी में क्या Then it is all about crying. I can't do it. आप जिस समय पर आपको जो काम करना था वो आप नहीं करते हैं
तो वो काम भर भर के एक पहाड़ बन जाता है और वो आलस का वो लक्ष्य पहुंच जाता है जहां पर आप कहते हैं कि अब मुझसे ये काम नहीं हो सकता We है। move from hopelessness to defeat. हम लोग निराशा या आशाहीनता से जो है हम असफलता की तरफ बढ़ I जाते know I हैं। can't do it. ये मुझसे हो ही नहीं सकता, ये काम मेरे जीवन में मेरे से हो ही नहीं सकता Proverbs है। 21:25. मेरे साथ नीति वचन 21 उसकी 25वीं आयत को खोलिए। नीति वचन 21वीं अध्याय उसकी 25वीं आयत। आलसी अपने लालसा ही में मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते The हैं। desire of the sluggard kills him. आलसी अपने लालच में ही मर जाता है। If you are at this stage, you're a living corpse. You understand? You're dead. अगर आप सामने आप में हर चीज में निराशा ही है, आपके जीवन में आप हर चीज को देख के कहते हैं अरे मुझसे ये हो ही नहीं सकता, तो आप जीती जाती लाश हैं। As mentioned, we fail to look at the challenges that rightly are challenges, and God gives grace to take these challenges, but we do not want. हमारे सामने परमेश्वर का दिए कर्तव्यों को करने में चुनौतियां हैं, चुनौतियां आएंगी और परमेश्वर हमें आशीष देता है इन चुनौतियों के ऊपर जीत पाने के लिए। परंतु हम क्या करते हैं, हम ठेलना शुरू करते हैं, हम इसको अगले दिन की दबाना, क्योंकि हमें वो काम ज्यादा करना पसंद नहीं है। The fourth stage, apathy. I no longer care. अब आखिरी जगह पहुंचते पहुंचते हम लोग उदासीनता की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। State of mind which feels nothing. एक ऐसा मानसिक समय जहां पर हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता या उसे कोई हमें उदासीनता के रूप में हम We देखते become हैं। indifferent to the needs of others. बाकी लोगों की जो जीवन की जो जरूरतें हैं उनको देख के हमें फर्क नहीं पड़ता We है। just keep feeding our selfish mind. हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थी मन को भरते रहते हैं, उसको खिलाते रहते I हैं। no longer care. अब मुझे दूसरों से फर्क नहीं पड़ता है। I definitely see in CBF there are members who have now become in this stage who no longer, who think they don't care for anything. That is an acute sign of laziness. अगर आप आलसीपन को, मैं कलीसिया में भी कुछ लोगों में देखता हूं जहां पर वो इस बात को बिल्कुल तय कर चुके हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे दूसरे का जीवन या परमेश्वर की कलीसिया उसकी शरीर को लाभ हो, उत्पन्न हो। वो वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो खुले में इस बात को कहते हैं कि मुझे इसमें कोई आम काम नहीं करना है। Dorothy says, being spiritually and morally asleep, we worship without wonder and listen without surprise and sin without fearing of paining the heart of Christ. डॉर्थी सेयर इस बात को कहती है आलस से क्या होता है, हम लोग आत्मिक रूप से और नैतिक रूप से नींद में सो जाते हैं, हम लोग जीते जाते लाश बन जाते हैं और उस कारण हम लोग की आराधना में हम लोग उस अभाव से नहीं आराधना करते हैं और हम लोग किसी चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग पाप करते हैं बिना डरे हम पाप करते हैं और हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है जिस उस पाप करने से प्रभु यीशु मसीह का दिल दुखता है। So, what are the four stages? Laziness, procrastination, despair, apathy. LPDA. Okay? Laziness, procrastination, despair and apathy. आलसपन, उसके टाल मटोल जो है, उसका उदासीनता और उसके बाद निराशा और उदासीनता। Okay, I'll speak for a couple of minutes and then we'll close. कुछ क्षणों के लिए और मैं बोलूंगा और उसके बाद हम लोग इसको There's a समाप्ति cost करेंगे। to this laziness. आलस अगर हम करते हैं तो ऐसा नहीं कि ये हमारे जीवन में आलस करने से सब ठीक हो जाएगा और हमारे जीवन के प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। The cost is a stunted growth. इसका जो दाम जो आप चुकाने वाले हैं उसका क्या दाम है पता है? आप एक ऐसी आपकी जीवन में उन्नति जो है वो नहीं हो You पाएगी। lose sight of the purpose of with which God has sent you, kept you in a particular. जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको सृजा है और इस संसार में जहां पर आप हो वहां पर रखा है, उस उद्देश्य को आप देखना बंद कर I want देते you to हैं। turn to Ephesians 2:10. इफिसियों की Very famous verse. इफिसियों की दूसरी अध्याय 10वीं आयत को मेरे साथ खोलिए। And I want you to underline that. मैं And चा- think of this verse in the context of laziness.
और आलस की पृष्ठभूमि में इस आयत को जरा ध्यान से पढ़िए। Paul says, for we are his workmanship. और यहां पर पौलुस कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, Created in Christ Jesus for laziness. और- Created in Christ Jesus for और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, which works which God has prepared beforehand that we should walk in them. सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। God's workmanship. हम लोग परमेश्वर की सृष्टि हैं। God has worked in this creation. परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाने के लिए काम किया है, Because of his work, there is a beautiful creation. और उसके काम के कारण एक बहुत प्यारी सृष्टि उत्पन्न हो गई है। But here we are. परंतु प्रिय जीजों, आज हम यहां पर बैठे हैं, Workmanship of God being lazy. परमेश्वर का जो काम जो है उसी काम में हम लोग आलसी हो चुके हैं। That's the problem with us. ये हमारी समस्या है। If we merely continue the quest of our comfort, प्रिय जीजों, अगर हम हर चीज में हम अपने जीवन में अपनी ही आराम चाहते हैं ना, then we will lose sight of God and who created us for good. तो उसका सिर्फ एक ही परिणाम हो सकता है। वो परिणाम ये है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है, जो कर्तव्य परमेश्वर ने आपको दिया है, उस कर्तव्यों का उल्लंघन, उन कर्तव्यों को तिरस्कार करते हुए आप और हम जीते हैं। Hebrews 5, we read that and we stop there. इब्रानियों 11 to 13. 5वीं अध्याय 11वीं से 13वीं आयत। About 11 to 13. Hebrews 5, 11 to 13. About this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child. What is the writer here saying? He's talking about a spiritual retardation that you see in the life of believers, a prolonged immaturity, a stunted growth caused by inattentive, lazy, procrastinative mindset toward God, His Word and His work. यहाँ पर इब्रानियों का लेखक जो है हमें साफ साफ बुलाता कहता है कि अगर आप अपने जीवन में आलस से चीज़ों को करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में हर चीज़ में आप टाल मटोल करेंगे, हर चीज़ में आपके जीवन में उदासीनता उत्पन्न होगी, तो उससे क्या होगा? आप एक बालक ही रहेंगे। परमेश्वर के राज में आप जिस प्रकार आपका परिपक्व होना जरूरी है, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, वो उस परिपक्वता की तरफ हम कभी बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आलस के कारण हम परमेश्वर के वचन को ही सुनना बंद कर देते हैं। उसके नियमों का मानना, उसके कर्तव्यों को पूरा करने से ही हम पीछे हटने लगते हैं। Any questions? And don't ask personal questions, I will not answer. कोई सवाल? Okay. Thank you. We'll continue with it. We'll probably take up a little more on laziness and we'll move to how do you remedy this? We just talked about the problem today. We'll talk about the remedy probably in later sessions. प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बातचीत की है।